So what I did, like in the third attempt, was in the second mains, कि I developed a writing thinking correlation. कि जब मैं आंसर लिख रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट का, at that point I'm not just focusing on writing that point, I'm also thinking about the next point. So there's a quotation of Martin Luther King Jr. कि if you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatsoever happens, do not stop. So that is the something with which you have to go ahead. Do not stop in this journey at any point of time, even if you're slow in the initially. You would realize that you cannot dump everything in your answers. You can write very limited content. We end up preparing everything and writing nothing. So it's Hmm. better to prepare less and write more. An attempt or two is wasted also in just understanding the nature of the exam. So पहले अगर ये समझ लें कि एग्जामिनेशन का नेचर कैसा है, सो इट वुड बी फेयरली इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन क्लियर कैसे कर सकते हैं. मे बी बहुत सारे अटेम्प्ट्स हमारे बच जाएंगे. प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में दो तीन चीज को लेके साइकोलॉजिकली आपको प्रिपेयर रहना है. नंबर वन, जो भी पढ़ के आओ हो सकता है उसमें से कुछ ना है. आई वुड नॉट डू थ्री थिंग्स एट ऑल. नंबर वन, आई वुड नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द साइकी ऑफ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हियर, बट मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा 2 दिन सर पढ़ाई बहुत अच्छा होता था तो मेरे को लगता था कि अब तो बन गए. यू नो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर जर्नी इज अ डिस्ट्रैक्शन. यू योरसेल्फ कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन. कीवर्ड, उसके कोर फीचर्स. एंड मैं एक तरीका यूज करता था मेंस की प्रिपरेशन के लिए, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक जिससे आप मेंस की ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो. To begin the session, we have with us today Sashwat Agarwal. He's All India Rank 121, 2023. He has been allocated IPS and he will be starting his police training very soon in December. He is a Varanasi born guy, a Kashi boy. And yeah, he has done his majors in political science from Delhi University. He has had PSIR optional. If I'm not wrong, it was his third attempt when he cleared this exam. And of course, uh, he got into Indian Police Services, and he's right here with us. I had the opportunity of knowing him in the interview program. If I can say that, I had the opportunity and privilege to mentor him also. And yeah, it has been a fine ride. He scored 200 in the interview, which is great. And he's one of those men out there who actually know what exactly to do with this exam, because his story is also has had a lot of resilience. uh, of course, more on that on some other day, but he really fought very hard for this exam. So thank you so much, Sashwat, for taking out your time and joining us here at Civils Daily. And as the session goes by, it is 8 months strategy for students who are beginning right now, and mostly we see 2025. Can they do it right now? If they can, Sashwat, how should they go about it? Over to you. Okay. So as I can see from the chats, most of the aspirants are appearing in 2025, Yeah. and some of them are appearing in 2026, uh, 2 or 3 in 2027. So I'm considering that mostly people are here to, get to know more about what can be the strategy for next 8 months for preparing for this. Uh, Maybe I can just start briefly from my own journey, just giving an overview of how my journey for civil services preparation was. I started preparing in 2020. Uh, so I did my graduation in political science from Delhi University, in BA honors political science. Then post that, I worked as a LAM fellow at PRS Legislative Research. Uh, Meanwhile, I had decided while pursuing the LAM fellowship that I would go ahead with civil services preparation. And towards the end of it, when COVID hit, I decided that I'll prepare for it full time. And I gave it 1.5 years of full time engagement. I gave my first attempt. Meanwhile, I could not clear the prelims examination in the first attempt. That was in 2021, and the gap was somewhere like 9 to 10 marks. Like the cutoff was 89 that year, and my score was like 79. So I missed by 10 marks. Uh, so I was kind of very saddled by the fact that I could not clear prelims in the first attempt. That was a major setback. So I decided to pursue my master's simultaneously, and I prepared for the rest of my preparation was always alongside with one engagement or the another. So my second attempt was in 2022. I cleared the prelims and I prepared for prelims very vociferously, and I'll discuss some of it, what I did, how I did. I increased my marks by 40 in GS. So from 79, it increased to 119, and but I could not clear the mains examination, that too by 4 marks. So the cutoff was 748 in 2022. My score was 744.
So again, that was a very major setback to have not been able to give the interview by just 4 or 5 marks. Then this was my third attempt in which I could secure a rank. I cleared the prelims closely, like by 7 to 8 marks from the cutoff, and I gave the mains examination with not that much of preparation, but with fair enough of preparation. And again, we can discuss what we can do for that. And I cleared the mains examination, appeared in the interview. Of course, Saket sir played a very crucial role in guiding me in that process, and got 121st rank. So this has been my journey in civil services. Uh, Considering this, I would like to begin firstly that, it's a very abstract question to answer what should be the strategy for the next 8 months, because everyone's preparation is very sui generis. You know, the level of preparation is different for every aspirant. The understanding of the examination, the understanding of the nature of the demand of the examination is very different for every aspirant. And I think that an attempt or two is wasted also in just understanding the nature of the exam. So पहले अगर ये समझ लें कि एग्जामिनेशन का नेचर कैसा है, सो इट वुड बी फेयरली इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन क्लियर कैसे कर सकते हैं, मे बी बहुत सारे अटेम्प्ट्स हमारे बच जाएंगे. सो वन ऑफ माय अप्रोच वुड आल्सो बी टू काइंड ऑफ डिस्क्राइब what is the nature of this examination, so that we can prevent ourselves from wasting a lot of our attempts. Right. So now the thing is, 8 months. So see, there may be two types of aspirants whom we can cover in this umbrella. One would be those who have given prelims before, or who have cleared prelims before, and then there would be those who would be giving prelims for the first time. So my understanding is that if you have given the prelims examination once or have cleared the prelims examination, that means that you have at least prepared for prelims fairly. So you can dedicate and you must dedicate coming 4 to 5 months for the mains preparation. So, as it is said that the month of October to February is actually the golden period for mains preparation, which is indeed very true, because the base for the mains examination that you prepare right now is reflected in your post prelims preparation for the mains examination. So this period from October to February acts as a base for your mains preparation that you do after giving the prelims examination. Having said that, if you have not prepared, if you have not given prelims till now, or if you have not cleared prelims till now, that means that your understanding of the prelims examination is very nascent. So that would mean that you can and you should start your prelims preparation full time from the month of February. And considering the nature of the prelims examination, you should dedicate at least 3 to 4 months for prelims, so that you can make sure that कि prelims तो clear हो ही जाए, क्योंकि prelims clear नहीं करना is a major issue, major setback in this journey. Now, Right. dividing the preparation into two parts in the coming 8 months, if you are, let's say, starting right now for the मेंस प्रिपरेशन, आई एम अज्यूमिंग दैट मे बी आपकी बेसिक प्रिपरेशन एक बार हो चुकी होगी, यानी कि बेसिक बुक्स आप एटलीस्ट एक बार पढ़ चुके होंगे. सो एनसीईआरटीज हो गए, या लक्ष्मीकांत हो गए, स्पेक्ट्रम हो गए, आप मे बी ये सारे एक बार पढ़ चुके हो, या आपको एक बार कोचिंग के नोट्स के थ्रू या किसी भी मटेरियल के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग सारे सब्जेक्ट्स की है. अगर आपने ये कर लिया है, तो आपको सबसे पहले अक्टूबर से लेकर के टिल द मंथ ऑफ February यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ एंटायरली टू द मेंस प्रिपरेशन, वेयर योर फर्स्ट अप्रोच शुड बी टू कंप्लीट योर ऑप्शनल. आप ऑप्शनल अगर 80% प्रीलिम्स के पहले कंप्लीट कर ले रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी इन अ विन विन सिचुएशन फॉर दैट अटेम्प्ट. अगर आप प्रीलिम्स के बाद अपना ऑप्शनल उठा रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी मच बिफोर, मच लैगिंग बिहाइंड compared to 50-60% of the aspirants who are appearing in mains. So first approach should be कि at least coming 3 to 4 months में आप अपना optional 80% at least complete कर लें, specifically those topics जहां से बहुत सारे PYQs उठते हैं. सो जैसे मेरा केस मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर का था, सो आई कंप्लीटेड माय ऑप्शनल इन माय सेकंड अटेम्प्ट बाय द मंथ ऑफ February एटलीस्ट 80%. दोस 20% टॉपिक्स आल्सो दैट आई लेफ्ट वर द वंस जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे. सो द फर्स्ट इज कि एटलीस्ट आप अपने डे का 20-30% डेडिकेट करें ऑप्शनल को, एंड मेक श्योर करें कि आपका February मंथ तक ऑप्शनल किसी भी तरीके से कंप्लीट हो जाए. दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द सेकंड थिंग इज हाउ कैन यू गो अहेड विद द प्रिपरेशन ऑफ मेंस. सो माय सजेशन जनरली इज कि आप GS4 से अपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू करिए. GS4 में एथिक्स की जो की टर्मिनोलॉजीज हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड है, आप उनकी बहुत डिटेल्ड नोट्स अभी मत बनाइए. आप अभी सिर्फ उनके इंटरनेट से डेफिनेशंस और एग्जांपल्स निकाल करके रख लीजिए. सो लेट्स से देयर आर लॉट ऑफ कीवर्ड्स लाइक इंटेग्रिटी, डेडिकेशन, पब्लिक सर्विस, एम्पैथी. आप इन सब के डेफिनेशन निकालिए और इन सब के एग्जांपल्स निकाल करके रख लीजिए, विच इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, सोशल लीडर्स,
एज वेल एज आपके जो डे टू डे रिफॉर्मर्स और ये सारे आ रहे थे, यानी कि दो कैटेगरी में आप इनके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। सो मैंने ऐसा किया था, विच आई कैन पर्सनली सजेस्ट, कि मैंने 50 to 60 एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स के एग्जाम्पल्स ले लिए थे हु हैड डन समथिंग और द अदर गुड इन देयर फील्ड. So 50-60 IAS officers or administrators, 20 to 30 IPS officers like KPS Gill and Kiran Bedi and Julio Ribeiro and people like that. And a lot of social leaders like Baba Amte, Mother Teresa, Sudha Murthy and things like that. And I use them extensively in my answers. तो इनिशियली मैं एक रिपोजिटरी बना लिया इस तरीके से एग्जाम्पल्स की अपने GS4 के लिए, एंड दिस वुड नॉट टेक मोर देन 10 days. मैं आपको GS4 की प्रिपरेशन करने को नहीं बोल रहा. आई एम जस्ट आस्किंग यू कि फर्स्ट 10 days आप GS4 के जो सिलेबस में जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनके डेफिनेशंस बना लीजिए और उसके एग्जाम्पल्स बना लीजिए. दैट्स इट. और कुछ कीवर्ड जैसे कोटेशंस हो गए, जो कुछ आप वैल्यू एडिशन यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, आप उनको लिख के छोड़ दीजिए. GS4 में अभी बहुत टाइम देने का नहीं है. दैट यू कैन कंटिन्यू आफ्टर प्रीलिम्स आल्सो इफ यू हैव, अभी क्योंकि केवल 8 महीने हमारे पास बचे हैं. Once you've done this, then you can start with your GS 1 2 3 in a very detailed fashion. GS 1 2 3 की आप बहुत अच्छे से मेंस के डिटेल्ड प्रॉपर वैल्यू एडेड नोट्स बना लें अगर अभी. सो दैट वुड एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर नंबर वन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तो मेरे साथ ये होता था कि मेंस के नोट्स के बेस पे मैं अपने प्रीलिम्स के आगे चल के नोट्स बनाता था. एंड देन जो मेरे मेंस के नोट्स होते थे दैट तो आई वुड यूज इन मेंस एग्जामिनेशन. सो मेंस के नोट्स मैं इस टाइम पीरियड में यानी अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक मैंने अपने कंप्लीट किए, जिसमें GS 1 2 3 जो कि ओवरऑल सिलेबस प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप करता है उसके डिटेल नोट्स बना लिए. व्हेन आई एम सेइंग डिटेल नोट्स आई मीन कि जो सिलेबस के हर टर्मिनोलॉजीज हैं उस पे 3 से 4 पेज के मेरे पास बहुत हाई क्रिस्प मटेरियल होना चाहिए, विच इंक्लूड्स जो भी सब्जेक्ट है उसका, जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन, एक बहुत सॉलिड सा कंक्लूजन विद अ कीवर्ड, उसके कोर फीचर्स. एंड मैं एक तरीका यूज करता था मेंस की प्रिपरेशन के लिए, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक जिससे आप मेंस की ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो, विच इज कि आप कोई भी टॉपिक मेंस के सिलेबस, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म आपने टॉपिक उठाया फ्रॉम द सिलेबस, आप देखो PYQs में कि सेक्युलरिज्म से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, आप उसका एक इंडेक्सेशन session. So let's say the question is, what is secularism? What is the difference between Indian and French secularism? How is Indian and American secularism different? So आपका एक इंडेक्सेशन तैयार हो जाएगा, different types of secularism in different countries. Challenges to Indian secularism, features of Indian secularism, and way forward in Indian secularism. Let's say broadly these 5 headings are there. एंड अब इन 5 हेडिंग्स में आपको अपने नोट्स बना लेने हैं विच वुड बी द फाइनल नोट्स ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन. एंड दिस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनीवेयर. दिस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम चैट जीपीटी, फ्रॉम एनी कोचिंग मटेरियल, जहां से भी आपको मिल जाए. मैं PYQ सोल्यूशंस उठाता था 2-3 कोचिंग्स के, एंड मैं वहां से बहुत सारे PYQ से सोल्यूशंस उठा के अपने नोट्स में डायरेक्ट बना लेता था. सो आपको बहुत ज्यादा नोट्स के लिए भागने की भी जरूरत नहीं है. मैंने कुछ केस में इनफैक्ट सिविल्स डेली के एक आते हैं स्पैश नोट्स करके, जैसे पॉलिटी के लिए, वो बहुत अच्छे हैं. आप उसके कुछ वैल्यू एडिशन उठा सकते हो फेडरलिज्म और ये सारे टॉपिक के, जहां पे आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, पॉइंट्स बहुत क्लियरली मेंशन मिल जाएंगे. इसके साथ साथ मैं करता था कि कुछ वैल्यू एडिशंस मेरे हर टॉपिक में होने चाहिए. लेट्स से डेटा वैल्यू एडिट्स में फैक्ट्स. अगर कोई कमिटी बनी है, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग FCI तो शांता कुमार कमिटी, साइबर सिक्योरिटी तो गुलशन राय कमिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी तो श्वेत कातकर कमिटी. सो आई हैड अ रिपोजिटरी ऑफ 50-60 कमिटीज जिसके रिकमेंडेशन के कीवर्ड्स आई वुड मेंशन इन माय आंसर्स. सो मैं हर टॉपिक पे उनके कंक्लूजन में एक कमिटी यूज करता था प्रेफरेबली, ताकि एग्जामिनर को लगे कि मेरा आंसर बाकी बच्चों के आंसर से थोड़ा अलग है. तो 50-60 कमिटीज के आप, सरकारिया कमीशन, बेजुबारिया कमीशन, ऐसे करके बहुत सारे कमिटीज बने थे. आप मार्केट से कोई कमिटी के मटेरियल्स उठा लो, अदरवाइज अलग अलग कोचिंग के मटेरियल जैसे आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, और आप कमिटी के कीवर्ड्स का नोट्स अपने नोट्स में बना लो. और ये काम अभी कर लो आप. ये काम अगर आप फरवरी तक कर लिए तो आप देखोगे कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी बहुत कॉन्फिडेंटली होगी, और उसके बाद आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी. So this is the second thing मेंस की प्रिपरेशन के लिए. So the approach should be कि on all the syllabus terminologies of GS 1 2 3, take the topic of the syllabus, prepare the question, look at the questions that have come in the previous year and create an indexation कि क्या क्या topics उस सवाल से, उस specific topic से पूछे जा सकते हैं आगे. And prepare a formatted notes, very structured, crisp, pointed notes out of that from various materials, which can be PYQ solutions, any coaching material, whichever you find relevant. मैंने अपने पूरे internal security के notes mainly एक टॉपर की कॉपी से और चैट जीपीटी से बनाए, और मेरे बहुत इजीली नोट्स बन गए, क्वालिटी नोट्स बन गए.
Fourth Sashwat, thing, when you shift the game to GS after yes, sir. the next preparation and optional preparation, you said that we can start GS. Yes, sir. For GS, are there any priority topics? For example, priority subjects for that matter, like big fours, polity, economy, Yes, sir. geography, environment combined, Sure. which has a relevance in prelims also and mains also. Would Yes, you sir. want students to prepare for big fours first? And of course, there should be some low priority subjects also. For instance, art and culture maybe, which is not as relevant for mains as could be for prelims, or vice versa, subjects like that. So how would you like decode a bit more on GS when it comes to preparation? Optional ethics is fine, you have given them a roadmap, but for GS, what should they do first and what should they do later, like Sure, sir. So what I had done for GS was कि GS में I had created categories of topics, which means that in GS, if you read the syllabus very properly, you would find that not all the topics are completely unique in nature. So society in GS1 and social justice in GS2 are correlated. In the same fashion, disaster management in GS3 and geography in GS1 are correlated. So what I created was to create a bucket of topics, which would include history, that includes art and culture, modern, ancient, medieval. Ancient, medieval से कम questions आते हैं, but art and culture, modern and world history. The second bucket would be society from GS1 and social justice in GS2. The third bucket would be geography in GS1, disaster management and environment in GS3. The fourth bucket would be polity, constitution in GS2. The fifth bucket would be IR. The sixth bucket would be economy, then internal security, independent buckets, and then science and technology, an independent bucket. So my approach was that those topics I would prepare first, which are overlapping with the prelims. So I would complete geography, environment and disaster management first. क्योंकि मेरी डायरेक्ट प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सी होता क्या है सर, मेरे साथ एटलीस्ट ये होता था कि एटलीस्ट अगर मैं टारगेट बना रहा हूँ कि मेरे को 100 टास्क कंप्लीट करने थे, इवेंचुअली आई वुड बी एबल टू डू ओनली 80, जितना Hmm. भी एफिशिएंट मैं हूँ। आई कुड नॉट कंप्लीट इन एनी सर्कमस्टांस 100% ऑफ ऑल माई टारगेट्स। तो मेरे को पता था कि कुछ छूट जाएंगे, तो पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स उठा के अपन कंप्लीट कर लें उसे। तो वो टॉपिक उठा के कंप्लीट करना जिसमें प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप है, वो ज्यादा फायदा है, क्योंकि उससे इन अ वे मेरी इनडायरेक्टली प्रीलिम्स की भी बेस प्रिपरेशन हो जाएगी। सो आई वुड कंप्लीट ज्योग्राफी, environment and disaster management first. Then I would complete polity because GS2 is a very scoring paper. आप उसमें बहुत value addition करके अपने quality answers लिख के आ सकते हो, howsoever the tough paper is. Even if we look at this year's paper, even then GS2 can be answered very well. Yeah. The third would be, sir, if you look at economy and agriculture, again that has an overlap with prelims, so I would prepare that Yeah. very thoroughly. सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस सर मैं इसलिए कर लेता था बहुत पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट हमारे पास जॉनरिक है, और इसको बस कंटेंट को स्पेशलाइज करना है। अब Hmm. जैसे मैं यहाँ पे भी अभी भी एक आंसर अगर लिखने को दे दूं, जैसे इस साल क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द वेरियस कल्चरल स्पेसिफिसिटीज ऑफ फलाना फलाना, सो एवरी वन वुड बी एबल टू राइट अ डिसेंट आंसर देर, क्योंकि वो क्वेश्चन ही जॉनरिक है कि Hmm. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, नाउ ये एवरी वन वुड बी एबल टू राइट इट। Yeah. My point is कि the differentiator is the specificity that you're mentioning, कि आप कितना वैल्यू ऐड उसको करके एक अच्छा आंसर बना पा रहे हो। सो माय सजेशन इज कि आप सोसाइटी सोशल जस्टिस पहले से तैयार कर लें, ताकि उसके आंसर्स आपके थोड़े से स्पेशलाइज हो जाएं। What are Hmm. the topics that you can leave or that you can push or that you can maybe do after prelims are the ones जो कि prelims में एकदम पूछे नहीं जाते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गए। जैसे आपके अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो और डिजास्टर छोड़ दे रहे हो, तो उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क ये सब में प्रीलिम्स में इतने सवाल नहीं आते हैं, तो आप Hmm. वो में भी आगे चल के कर सकते हो। साइंस एंड टेक जिस तरीके से मेंस में आते हैं वैसे प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो मेंस की Hmm. साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हो। सो ये सारे टॉपिक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मेन सेंट्रिक हैं, आप मे भी उनको बाद में कर लें, बट Hmm. जो टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के साथ ओवरलैप करते हैं, दैट इज वेरी मच सजेस्टेड टू डू फर्स्ट बिफोर हैंड। And how many months should we spend on doing those overlap topics? If we say January से कब से कब Yes, sir. तक होगे Uh, उसको? I I would say कि at least 2 months would go into it because these are very detailed topics. Hmm. Hmm. And जैसे सर कई लोग ये कहते हैं कि वी यूज टू डू लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि प्रीलिम्स और मेंस की हम साथ में तैयारी करते थे। आई एम पर्सनली नॉट अ वेरी बिग वोटरी ऑफ दैट। मेरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग हुई, मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग हुई, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन का नेचर एकदम अलग है। हो Right. सकता है प्रीलिम्स की नॉलेज मेंस में आ जाए काम, हो Hmm. सकता है कि आप आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, मेंस के लिए एकदम पढ़ के ही ना जाओ और उससे भी आर्ट एंड कल्चर का आंसर मेंस में लिख के आ जाओ। बट अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप प्रीलिम्स के लिए, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो उससे आप मेंस के आंसर नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू प्रिपेयर। अगर आप फेडरलिज्म पढ़ रहे हो
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से अलग तरीके के नोट्स फेडरलिज्म के चाहिए। सो माय हम्म। अप्रोच वाज कि वी हैव टू डेडिकेट 3 to 4 months, जो अभी का टाइम है अक्टूबर से लेके फरवरी तक का, फॉर द मेंस प्रिपरेशन, एंड हैव डिटेल्ड नोट्स, क्वालिटी वैल्यू एडेड नोट्स ऑन ऑल द टॉपिक्स ऑफ सिलेबस फॉर जीएस 1 2 3 एटलीस्ट। एंड यू कैन पुश ऑफ द टॉपिक्स, अगर आप एंड में कर लो उसको, जो टॉपिक्स मेंस के लिए एक्सक्लूसिव है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गए। बट फॉर दोज टॉपिक्स लाइक पॉलिटी आप अभी से तैयार कर लो। And sir, you won't believe this worked wonders for me in prelims. Like last year, I used to prepare examples and this for the mains preparation. So अगर जैसे ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा कोरल रीफ्स, अब हम्म। उसमें मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैंने नोट्स अपने मेंस के बनाए बायोरॉक टेक्नोलॉजी। नाउ दैट क्वेश्चन डायरेक्टली केम इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो मैं मेंस के नोट्स बनाया बायोरॉक टेक्नोलॉजी के, और उससे 2022 में डायरेक्ट बायोरॉक पे एक क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में। उसी राइट। तरीके से मैं सर अर्बन प्लांटेशन पे देयर वाज मियावाकी मेथड, जो या। कि मैं बेस्ट प्रैक्टिस में मेंशन करता था, विच अगेन इन कोचिंग नोट्स एंड न्यूज़पेपर्स वी यूज्ड टू फाइंड। उसको कभी प्रीलिम्स के पॉइंट से नहीं पढ़ा, लेकिन वो डायरेक्ट, क्योंकि मेंस के में बेस्ट प्रैक्टिस बनाया था, वो डायरेक्ट वहां काम आ गया। करेक्ट। तो मेंस की प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपेयर्स इट्स क्वेश्चन पेपर वेरी वाइजली। सो आप मेंस की प्रिपरेशन जब बहुत अच्छी कर लोगे, आप देखोगे कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत ईज आउट हो जाएगी। एंड प्रीलिम्स के लिए जो आपको पूरा फ्रेमवर्क बनाना है, वो मेंस के बेस से उठ करके आएगा। So the राइट। first target should be to complete at least 80% of your GS 1 2 3 till the month of February or February mid. And if you're not very confident with your prelims preparation, then you can start your prelims preparation from the mid of February. We can discuss what we can do for prelims after February, because हम्म। that matters a lot. It's But quite abhi, interesting that you said that you did not prepare prelims and mains in an integrated manner as it is no, supposed sir. to be prepared. So example देके समझा सकते हो, जैसे for instance secularism ही ले लेते हैं, Yes, sir. political. So how would you prepare secularism for prelims and how would you prepare secularism for mains? So sir, secularism for prelims would be very simple. Secularism for prelims मेरे लिए है सर पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स, Yeah. कि जो आर्टिकल 25 से 30 तक पढ़ लिए, दैट इज सेक्युलरिज्म। उसके अलावा कहीं पढ़ने को मिलेगा ही नहीं सेक्युलरिज्म के बारे में। ये बात है। मे हाँ। भी कहीं पे सर कोई एक्ट आ गया गवर्नमेंट का, ट्रिपल तलाक एक्ट आ गया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेंगे वो एक्ट। बट सेक्युलरिज्म इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मेंस के लिए मैं सेक्युलरिज्म पढ़ रहा हूँ, तो सर आई वुड प्रिपेयर अ डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, आई वुड हम्म। प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म, आई हम्म। वुड प्रिपेयर फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, आई करेक्ट। वुड क्रिएट लॉट ऑफ कीवर्ड्स की इंडिया का और फ्रांस का सेक्युलरिज्म डिफरेंट कैसे, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यस। लाइसिटे मेथड क्या है और सर्वधर्म संभव क्या है, मैं इसका एक कंपैरिजन ड्रॉ करके डायग्राम में दिखाऊंगा। देन आई हम्म। वुड फाइंड आउट द चैलेंजेस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एंड देन आई हम्म। वुड राइट अ वे फॉरवर्ड, जिसमें मैं मेंशन करूंगा कि योगेंद्र यादव हैज मेंशन्ड कि वी हैव टू चूज अ मोर प्रिंसिपल्ड वे ऑफ secularism that is rooted in Indian culture, not हम्म। the Western model of secularism that is kind of हम्म। imported from the West. So हम्म। that would be a conclusion. And then in the spirit of Sarva Dharma Sambhav, this can be a keyword. तो एक 3 4 पेज का मेरा नोट्स बनेगा सर मेंस की प्रिपरेशन का, विच इज वेरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रीलिम्स प्रिपरेशन। पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर एक क्योंकि और ये बहुत एग्जांपल सर इसका ले। इंटरेस्टिंग है कि आपको इंडिया फ्रांस पता है बिकॉज आपने पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज कर रखा है। यस यू सर। नो दैट इंडिया फ्रांस रिपीट हो रहा है और कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक थीम भी है। तो उस सेंस में आप इंडिया फ्रांस को स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हो। यस तो सर, पीवाईक्यू एग्जैक्टली। का भी आप थोड़ा सा बता सकते हो अगर कि कैसे एक रेलेवेंस आ जाती है यहाँ पे टू सेग्रीगेट दैट यस नॉट ओनली थीम बट ऑल्सो क्वेश्चंस प्रोबेबली द कंट्रीज प्रोबेबली या कोई फ्रेमवर्क प्रोबेबली कुड बी रिपीटेड फॉर एग्जैक्टली। एंड फॉर मेंस। तो उस पे भी थोड़ा सा बता देना आफ्टर यू कंटिन्यू ऑफ कोर्स व्हाट यू वर श्योर सर। कंटिन्यू। या। So sir, for me, PYQs was like a lighthouse to direct the minds of UPSC. जैसे बेरूबारी यूनियन में कहा था, preamble is to understand the minds of constitution makers. In UPSC journey, PYQ is to understand the minds of UPSC question paper creators, whosoever they are. So अगर आप ट्रेंड देखें सर PYQs का, तो मतलब UPSC is giving us directions कि हमें ये चाहिए आंसर्स में। आप हम्म। 2022 का पेपर देखिए सर, पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट आर द वेरियस केस लॉज ऑफ एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, व्हिच मींस कि दे वांट कि आप अपने आंसर्स में सुप्रीम कोर्ट केसेस मेंशन करें। दैट वाज करेक्ट। द फर्स्ट टाइम वैसा क्वेश्चन आया। एंड ज्यादातर लोग नहीं प्रिपेयर थे उसके लिए। बट हम्म। उसके बाद अगर आप देखें, सारे बच्चे प्रिपेयर करना शुरू कर रहे अलग से केस लॉज, विच मीन सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसका कंपाइलेशन अलग से टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना शुरू करें। एंड नाउ हम्म। दैट इज अ रिकरेंट थीम अक्रॉस टॉपिक्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया कि राइट टू लाइफ और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे रिलेटेड हैं। तो उसमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा एंड ओल्गा टेलिस, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स यूज हो सकते हैं। सो माय पॉइंट इज कि पीवाईक्यू से आप
समझते हो कि यूपीएससी की कोर रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो बी एन श्री कृष्णा कमीशन पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स कि आप वे फॉरवर्ड में कमीशन एंड कमिटीज के रिकमेंडेशन डालोगे तो यूपीएससी वुड अप्रिशिएट दैट। राइट। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन में इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस पूछ रहा है, दैट मीन्स कि आप सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज अपने आंसर में डालोगे, सो यूपीएससी वुड अप्रिशिएट दैट। सो दैट वाज द वे आई took like the PYQs in a way, using Supreme Court judgments, committee recommendations, examples, data and facts, even to a certain extent। आप देखिए सर, जो यूपीएससी की फिलोसॉफिकल लैंग्वेज एथिक्स में यूज होती है, कोटेशंस बेस्ड क्वेश्चन अगर एथिक्स में पूछ रहा है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कोटेशन से करता था, हाँ। क्योंकि आई फेल्ट कि एक तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट दे रहा है आंसर को, एंड प्लस दैट इज सेटिस्फाइंग द वे यूपीएससी इज आल्सो थिंकिंग अबाउट द पेपर। So करेक्ट। that is the way you have to look at question papers. You have to examine the trends and you have to use the question paper in the answers as well, in a way. So October to February is what you recommend कि you go mains heavy अभी. Yes, sir. Focus on Exactly. value addition, focus on big fours, especially Yes, those sir. subject that also has an overlap with prelims. Yes. After February, you say that change the approach towards prelims. Yes, Do sir. not like come out of the mains mode. Yes, So sir. after February, what would you recommend? Sir, Like इसमें बस February एक we are rider clear. I would like to add. February we Oh, are clear. We have to complete optional. We have to complete ethics, and we have to complete big fours for mains perspective only. We haven't touched prelims so far specifically, right? yes, sir. According to you. Yeah. So, having said that, sir, my understanding is कि even the journey from October to February would be very much different for uh, aspirant to aspirant, as in where their preparation stands. Maybe अगर आप prelims एक बार clear कर चुके हो और आपको प्रीलिम्स की एक फेयरली अंडरस्टैंडिंग है कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने में, मे बी यू कैन रिस्क टेकिंग योर प्रिपरेशन फॉर मेंस अप टिल मिड ऑफ मार्च। बट अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर किए हो या आप प्रीलिम्स आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, देन माय पर्सनल सजेशन इज नॉट टू टेक रिस्क्स एंड प्रिपेयर फुल टाइम फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम मिड ऑफ फेब और एंड ऑफ फेब, and go mains heavy from now till February. And this is very established. Like I have a very strong conviction कि जो अक्टूबर से फरवरी तक मेंस हैवी चला जाएगा, उसको उतना ईज होगा आपका जून prelims के टू बाद. सितंबर तक के टाइम पे, बिकॉज जून टू सितंबर तक का टाइम इज वेरी स्ट्रेसिंग। एंड आई पर्सनली हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो कि प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सब प्रीलिम्स क्लियर करने का एक अलग काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, इट कैन बी क्लियर्ड अदरवाइज ऑल्सो मेंस की प्रिपरेशन के बिना भी, बट जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं विदाउट द मेंस प्रिपरेशन, most of them end up giving up between June to September because mains का preparation is so gargantuan. So my suggestion to everyone is कि अगर आप एक सक्सेसफुल फाउंडेशन मेंस की प्रिपरेशन का अक्टूबर से फरवरी में बना लेते हैं, that would give you the mental sanity to prepare for prelims between March and May, and also to prepare for mains between June and September. So this is Sachin, actually the golden period of your mains preparation. what would that foundation include from October to February? Would you also suggest them to write answers or maybe practice tests, or solely focusing on making their own notes, which has a lot of value addition, maybe through like X Factor notes or through topper copies or through ChatGPT, whatever medium students choose to? What would you recommend? Either they should go answer writing heavy, mock test heavy, or they should focus more on making their own notes depending on various sources available. So the first and foremost is कि syllabus के सारे topics पे one should have their own notes. That is the first requirement. And Correct. that notes should also not be abstract. That notes should also be very value added and should be very relevant to the mains preparation. The second is कि if you have prepared notes, let's say on a subject, then you can try writing answers on it. I'm not saying कि आप एक full length test लिखिए, but at least let's say if you have completed polity, then you can write a half length test of polity, which you can find at various coaching institutions. तो एक HLT और एक half length test और maybe a 10 क्वेश्चन टेस्ट आप ट्राई करके लिख लो, सो ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए पैरेलली कि आप कि जब आंसर लिखते हैं तो उसमें क्या आंसर्स में कंटेंट फिट होता है। सो माय अप्रोच जनरली इज कि आप एक बार आंसर लिख के देख लो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि बहुत कंटेंट आप आंसर में नहीं डाल पा रहे हो, तो यू वुड आल्सो सिमुलेट योर मेंस नोट्स अकॉर्डिंगली। सो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग योर फाउंडेशन नोट्स फॉर मेंस, also towards the end of your first reading, try writing a few answers from the PYQs, at least 5 answers. Once you write those 5 answers, let's say in a time bound fashion, you would realize that you cannot dump everything in your answers. You can write very limited content. We end up preparing everything and writing nothing. So it's better to prepare less and write more. Yeah. So that is also very important, and that goes simultaneously. So alongside with preparation of your mains notes, write some answers
from PYQs. If you have not joined a test series, if you have joined a test series, then some half length test would suffice. But if you have not joined any test series, at least write 5 to 6 questions from the PYQs just to understand कि वो mains notes answer में fit हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. And then you would also be able to cut short your mains notes, write even crisper notes. So you would be finding notes making also very easy with the practice of answer writing. Both of them go kind of co-terminus कि And एक से दूसरा हेल्प होता है, दूसरे से पहला हेल्प होता है. probably learn the art of interlinkage as well, because this is the Yes, right time you can experiment economy knowledge to polity, society knowledge to maybe geography, and yes, check how much you are able to interlink. Because as you said yes, कि वो जैसे क्वेश्चन था एनवायरमेंटल लॉज वाला, वो नहीं आता था सबको, बट अगर इंटरलिंकेज आती थी तो कोई तो लिख के आया ही ना वहां पे, exactly. और उसी की गेम हुई फिर अल्टीमेटली. Yes, and I would also come on interlinkage wala part, sir, which I would suggest people to do more actively after the prelims. हम्म. How they can do interlinkages. There are methodologies with which people can do that, and that would save a lot of their time, energy, and Yeah, kind of the mental investment they do. So correct. this is the first thing कि आप foundation notes बना लें अपने mains के, and आप at least कुछ answers practice कर लें. That would be the best case scenario for your preparation. And then towards the end of February or towards the mid of the February, it is suggested to kind of pivot towards the prelims preparation. आप पाएंगे कि from the month of, let's say, from February mid to to the prelims exam, approximately 100 days होते हैं हमारे पास, प्लस हम्म. माइनस 10 डेज. 100 डेज हमारे पास, 100 से ज्यादा ही डेज होते हैं. तो हम्म. अगर 100 डेज हमारे पास हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट वी आर एबल टू डू 4 रिविजन ऑफ प्रिलिम्स इन दीज 100 डेज. द फर्स्ट फेज वुड बी कि आप प्रिलिम्स के सारे कंटेंट का कंसोलिडेशन कर लें, which means कि एटलीस्ट आप 50 डेज डेडिकेट करें टू कंसोलिडेट द एंटायर सिलेबस, विच इज योर हिस्ट्री. हिस्ट्री में आपका मॉडर्न इंडिया, एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर. Then second is your geography. Then third is your environment. Fourth is your science and tech. Fifth is your polity. Uh, and I think these many. And then there is current affairs. So ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आप इनके सारे सोर्सेज अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, और पैरेलली आप इनके प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देखें. कैसे देखेंगे, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, दैट वी कैन डिस्कस इफ नीडेड. बट माय अप्रोच इज कि अगर टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार क्लियर कर दूं कि फर्स्ट 50 डेज आप प्रीलिम्स के सारे कंसोलिडेशन को कंक्लूड या अच्छे से एक बार कंसोलिडेट कर लें. वंस वी हैव डन दैट, आफ्टर दैट फॉर द रिमेनिंग 50 डेज you have to make sure you do 4 revisions. The first revision can be of, let's say, 20-25 days. The second revision can be of 10-15 days. Third revision can be of 7 to 8 days, and fourth revision can be 2 to 3 days. And then there would be that 2-3 hour revision जो prelims के पहले होता है, जो आप subsequently revise करते करते अपने material को consolidate करते रहते हो, और end में आपके पास एकदम 10-12 पेज का एकदम consolidated material होता है जो आप रखते हो कि मैं 1 घंटे पहले पढ़ के जाऊंगा, जिसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, वो बहुत वैल्यू एडेड कंटेंट होता है. वो आप लास्ट के 3-4 घंटे में रिवाइज करते हो. सो दैट हैज टू बी द वे फॉर preparing for prelims. This is the direction in which you go. कैसे इसके individual aspects है, that we can discuss in detail. But the first 50 days, that is from, let's say, March to mid of April, you have to dedicate entirely to consolidate all the material for prelims. अगर सर मैं रिसोर्सेज का ब्रीफली अपने पर्सनली हाँ, सजेशन कर do दूं, it, तो मेरे please. लिए सर साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, मेरे को लगता था कि ये दोनों बहुत करंट हैवी आते हैं प्रीलिम्स में. हम्म. कॉस्ट बेनिफिट कम ज्यादा किसी भी साल हो सकता है. अच्छा, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में 2-3 चीज को लेके साइकोलॉजिकली आपको प्रिपेयर रहना है. नंबर वन, जो भी पढ़ के आओ हो सकता है उसमें से कुछ ना आए, तो इससे घबराना नहीं है कि यार ये क्या हो गया. आपको नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है. इट इज ओके टू नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी क्वेश्चन रेलिवेंट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. इट इज द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन. नंबर टू, द नेचर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज सच कि आप जितना भी पढ़ लो, हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में यू वुड गेट शॉक्ड. सो शॉक थेरेपी इज द प्रीलिम्स इज शॉक थेरेपी. सो आप उस शॉक थेरेपी के लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रहो. नंबर थ्री, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में द गेम इज ऑफ आर्ट ऑफ एलिमिनेशन. Even after so many tricks and techniques UPSC used to kind of eliminate the elimination technique, sir, मेरी understanding ये है कि elimination technique continues to remain very relevant for solving prelims questions. How and why, we can discuss that in detail. एंड नंबर फोर इज कि प्रीलिम्स आपका क्लियर होना उतना ज्यादा प्रोबेबल हो जाएगा जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे. इट इज अ सबसेट ऑफ रिवीजन, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवाइज किए रहोगे, आप उतने जल्दी से टॉपिक्स को इंटररिलेट करोगे, रिकॉल करोगे, एग्जाम में मार्क करोगे, और वो क्वेश्चन जो थोड़े टफ हैं उन पे वो 1-2 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा डेडिकेट कर पाओगे. एंड फिफ्थ इज मेंटल मैनेजमेंट. जो लास्ट के 100 डेज होते हैं, दे टेस्ट योर मेंटल मेटल लाइक एनीथिंग. सो मेरा एक स्ट्रैटेजी होता था कि आई वुड नॉट डू 3 थिंग्स एट ऑल. नंबर वन, आई वुड नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द साइकी ऑफ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हियर, बट मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा 2 दिन सर पढ़ाई बहुत अच्छा होता था, तो मेरे को लगता था कि अब तो बन गए.
तो और अगर 2 दिन पढ़ाई खराब होता था तो लगता था अब तो कभी नहीं बन पाएंगे। तो ये दोनों, ये जो एक जिसको कहते हैं साइन कर्व का टॉप एंड बॉटम है, ये मेरे साथ चलता था। तो वेन एवर दिस हिट्स कि ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है या फिर बहुत हाइपर नेगेटिविटी आ रहा है, आपको इसे अवॉइड करना है एंड यू हैव टू टैग इट मेंटली। जो मेडिटेशन करते हैं वो लोग ये टेक्निक यूज करते हैं कि वो अपने थॉट्स को टैग करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस आए या कभी भी हाइपर नेगेटिविटी आए, यू हैव टू टैग दैट कि दिस इज अ वीकनिंग थॉट एंड आई जस्ट हैव टू बुश इट अवे। And third is that you have to avoid distractions in those 100 days. Those 100 days are very important for prelims preparation. So distractions like mobile phones, even random thoughts, anything and everything that can distract you from your journey is a distraction. You yourself can be a distraction. So मैं इतना mentally hard-headed होता था कि anything is happening outside of my mind in the examination hall, I would just ignore that. क्योंकि मैं वो stoic mentality develop कर लिया हूँ कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे को सिर्फ पेपर देना है, दैट इज द एंड ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। तो hyper negativity, overconfidence, and distraction. These three things are there that you have to avoid at any cost in those 100 days. That tests your mental metal like anything. And number fourth is that you have to remain very positive. जब मैं 2022 का 23 का प्रीलिम्स दे रहा था, दैट वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन एंड फॉर मी आल्सो, क्योंकि वो पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। एंड 50वें क्वेश्चन तक आता है तो मेरे को लगा कि अभी नहीं हो पाएगा। So 51st question में I said to myself कि शाश्वत, this is the test that UPSC is taking of you. It is not the test of knowledge. It is just taking the test of your patience कि आप बैठ सकते हो कि नहीं इस एग्जाम में, and I will clear it no matter what. मेरा 8 मार्क्स से जीएस क्लियर हुआ, बट वो क्लियर हो गया। सो माई पॉइंट इज कि आपको उस हिसाब का मेंटल अपना पेशेंस रखना है कि व्हाट्स एवर हैपेंस आई विल नॉट गिव अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई विल जस्ट कंटिन्यू माई जर्नी। So there's a quotation of Martin Luther King Jr. कि if you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatsoever happens, do not stop. So that is the something with which you have to go ahead. Do not stop in this journey at any point of time, even if you're slow in the initially. And Wonderful, so, sir, wonderful. this is broadly the psychological As preparation that you have to do. So again, how to use, you said we can do a discussion on this, how to use PYQs for prelims, how to, eliminate, as you said, it's the game of elimination still, despite UPSC doing everything to eliminate the root cause of the system only, but you still believe that you can still eliminate, right? So more on that, more on the role of PYQs, and maybe interlinkage post prelims, how to usually interlink it. Yeah. And CSAT if you want to, like CSAT is equally challenging these days. So, sir, the first thing is talking about PYQs. Now, PYQs and prelims are again very important to understand the kind of requirement that UPSC has from the aspirant. So if you analyze the PYQs of prelims very thoroughly, you would realize that UPSC is not actually testing the knowledge of the aspirant. UPSC is actually testing the logical ability of the aspirant to make a logical guesswork in the examination. And if you are able to expand your capacity to make that logical guesswork, then the probability of clearing the examination increases. तो सर मेरा ये एक्सपीरियंस था कि 100 में से मेरे को 100% 30 to 40 क्वेश्चन ही आते थे, बट मैं 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता था, बाकी सब में गेसवर्क कर रहा हूँ बेस्ड ऑन सम नॉलेज और द अदर दैट आई हैव। सो इवेंचुअली यूपीएससी is a game of UPSC prelims is a game of logical guessworks and not just knowledge. Knowledge is the base with which you are making those logical guessworks. तो जहां तक वो नॉलेज का गेम है सर, उसमें जो रिसोर्सेज हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटीज या जो भी बेसिक मटेरियल आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बट एक बार आप वो कर लें तो आप उसके साथ पैरेलली उस टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं आप उसको रेफर करें। सो मेरा अप्रोच ये होता था कि रात में सोने से पहले आई वुड गिव 1 hour टू दी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज दैट आई हैव प्रिपेयर्ड दैट डे। तो इन्वायरमेंट अगर मैंने प्रिपेयर किया तो मैं इन्वायरमेंट के पीवाईक्यूज डिटेल में रात में देखूंगा, एंड आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कैसे पीवाईक्यूज पूछ रहा है। अब उसमें कुछ पीवाईक्यूज ऐसे होंगे जो कि आप कितना भी पढ़ लो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, सो यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू सॉल्व दोज आल्सो, वो Yeah. जानबूझ के पेपर टफ बनाने के लिए पूछ रहा है। कुछ पीवाईक्यूज होंगे जो बहुत ईजी होंगे, वो यूपीएससी इसलिए बना रहा है ताकि थोड़ा तो कट ऑफ हाई जाए, मतलब ऐसा भी ना हो कि कोई बच्चा कुछ नहीं सॉल्व कर पा रहा। एंड कुछ पीवाईक्यूज ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी हैज गिवन अ वेरी डायरेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको लॉजिकल गेसवर्क यूज करके उसे सॉल्व करना है। तो जहां पे आप देखिएगा विच वी कैन सम ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस दैट आई हैव इन माइंड, बट वहां पे आप देखिएगा कि किसी तरीके से कोई लॉजिकल एबिलिटी कोई लॉजिकल गेसवर्क लगेगा एंड यू कैन कम टू ए राइट आंसर। तो उन क्वेश्चंस को सर मैं क्या करता था कि सर्कल मार्क करता था कि ये क्वेश्चंस आर दी वंस दैट आर डिफरेंशिएटिंग दोज हु आर क्लियरिंग प्रीलिम्स एंड दोज हु आर नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स। अपने जो भी मेरे पास दिशा का एक पीवाईक्यू का सेट था मैं उसमें मार्क करता जाता था, सब्जेक्ट वाइज सेट मैंने मंगवाया था।
और उसमें मैं देखता था, उसके रिवाइज करता था, जैसे जैसे मैं सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट रिविजन्स करता था वैसे वैसे मैं पीवाईक्यू रिविजन्स भी करता था, और उन्हीं उन पीवाईक्यूज को देखता था जिसमें लॉजिकल गेसवर्क यूज हो रहा है। एंड आई वुड सी कि यूपीएससी क्या फ्रेमवर्क्स यूज करता है टू काइंड ऑफ मेक एस्पिरेंट्स बीन एबल टू सॉल्व द पीवाईक्यूज। एंड वहां से सर मैंने इस चीज की शुरुआत की कि देर आर सर्टेन लॉजिकल गेसिंग टेक्निक्स जो पीवाईक्यूज के थ्रू आप गेस कर सकते हो, जिसके मदद से आप पीवाईक्यूज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इट कैन बी वेरी सिंपल एज कि जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि ऑल ऑफ द रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस, ऑल ऑफ द एनिमल्स आर दिस, ऑल ऑफ दैट आर दैट, जनरली वो गलत होंगे क्योंकि देयर कैन बी वन और द टू एग्जांपल्स दैट नॉट इवन यूपीएससी नोस। यूपीएससी को क्या पता दुनिया में कितने एग्जांपल है, कितने जीव जंतु है, वो कार्निवोरस है कि नहीं है फलाना, जनरली वो गलत होंगे। तो जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं वहां पे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। दिस इज समथिंग दैट यूपीएससी इस साल 23 में भी 24 में भी दे हैड आस्क्ड इन प्रीलिम्स, वैसे डायरेक्ट एलिमिनेटेबल क्वेश्चंस। तो दैट इज वन थिंग। द सेकंड वाज की रिलेटिविटी ऑफ एक्सट्रीमिटी यू हैव टू चेक, विच मींस कि अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा एक्सट्रीम है और कोई क्वेश्चन कम एक्सट्रीम है, तो जनरली जो क्वेश्चन कम एक्सट्रीम है, जो स्टेटमेंट कम एक्सट्रीम है, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देन थर्ड डिडक्शन वाज कि जहां पे डेटा यूपीएससी यूज कर रहा है विदाउट मेंशनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन और मेंशनिंग अ कमिटी और मेंशनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, जनरली दैट इज रॉन्ग। सो ये सारे कुछ डिडक्शंस मैंने किए सर, जहाँ पे नेटिविटी के क्वेश्चंस हैं कि फलाना स्पीशीज यहाँ के नेटिव हैं, दैट इज जनरली रॉन्ग। जहाँ पे रेड डेटा बुक का यूज कर रहा है कि फलाना स्पीशीज एक्सटिंक्ट है रेड डेटा बुक में, दैट इज जनरली रॉन्ग। नाउ दैट कैन बी एन एक्सेप्शन, नो वन इज सेइंग कि वही हमेशा होगा, बट वो जनरलाइजेशंस मैंने कुछ कुछ किए एंड देन आई यूज देम एक्सप्लिसिटली इन माई पेपर्स, एंड उससे मेरे बहुत इजीली काफी सारे क्वेश्चंस अप एंड डाउन सॉल्व हो जाते थे। हैविंग सेड दैट, दिस इज नॉट एन एंटीडोट। जो पीवाईक्यू से मैंने लॉजिकल गेसिंग टेक्निक्स शुरू किए थे, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ही आपके यूज हो जाएंगे, एंड दैट कैन बैकफायर ऑल्सो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पार्ट को इतना अच्छे से कर लें कि जो बहुत बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है आप उनको तो गलत नहीं करें, और जहां से आप लिंकेज बैठा के सॉल्व कर पा रहे हैं आप उनको भी गलत ना करें। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी पूछता है जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली लॉजिकल गेसिंग के होते हैं, जैसे 2024 23 का पेपर वो सेट टू बी वेरी टफ। अब Yeah. उसमें एक क्वेश्चन आया कि वो कौन सा एनिमल है जो कि पेड़ पे चढ़ता है, एंड वो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द क्वेश्चन, बट वो पेड़ की एक फिग बनाता है, उसमें से पेड़ के अंदर से इट वुड टेक आउट समथिंग एंड देन इट वुड ईट इट, कोई एनिमल पल्प निकालता है उसको खा लेता है। नाउ फर्स्ट रीडिंग में आई सॉ द क्वेश्चन एंड आई फेल्ट कि ये क्या एब्स्ट्रैक्ट चीज पूछ लिया है, बट व्हेन आई सॉ द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस इन द सेकंड रीडिंग, तो मैंने चारों ऑप्शंस पढ़े, एंड उसमें एक ऑप्शन वाज वेरी मच लाइक, आई थिंक चिंपैंजी और स्लॉथ बेयर और समथिंग वाज द आंसर टू दैट, ओरंगुटैन वाज द आंसर टू दैट। तो ओरंगुटैन, आई कुड रिलेट कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके पास इतना ज्यादा लॉजिकल एबिलिटी है कि वो पेड़ पे चढ़ के एक एक फिग बना के उसको अंदर डाल के उसमें से पल्प निकाल के खा ले रहा है। दैट वुड बी वेरी मच सिमिलर टू द वन हु हैज अ ह्यूमन लाइक जीनोम, एंड orangutan is very close genetically to human beings. Now this is a very basic logic that you can apply, and उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन मेरा सही हो गया। तो Hmm. ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी के मिलेंगे जो कि आप लॉजिकल बेसिस पे आप सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन 2022 में आया था सर कि अफ्रीका में आई थिंक सूडान के पास कौन सा कंट्री है जहाँ पे राइटिंग हुई थी, एंड वहां से लोग माइग्रेट करके यहाँ चले गए थे, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, बट अगेन अगर आप थोड़ा सा भी अफ्रीका का मैप जानते हो तो आप देखोगे कि दो कंट्रीज के बीच में गैप बहुत ज्यादा था जो उसमें Hmm. पूछे गए थे, एंड यू Hmm. कुड डेड्यूस आउट कि उसमें से कौन से सही कौन से गलत होंगे। तो Hmm. बहुत बेसिक नॉलेज आपकी यूज करके यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन बना रहा है। आप स्टैटिक अपना बहुत स्ट्रांग रखिए, स्टैटिक क्वेश्चन गलत करना नहीं है, मतलब दैट इज अ क्राइम टू डू रॉन्ग एन इजी क्वेश्चन। एंड आप थोड़े से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लीजिए कि जो कि आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, एंड देन यू यूज दीज लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स एक्सप्लिसिटली। अगर सर इफ यू अलाउ मी, लाइक आई यूज 2-3 सोर्सेज फॉर प्रिपेयरिंग दीज Yeah. लॉजिकल एलिमिनेशन Please, टेक्निक please, प्रोग्राम्स। please go ahead. वन वाज कि देयर वाज दिस एचआरटी का सर एक ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब पे डले हुए हैं लॉजिकल एलिमिनेशन के टेक्निक्स के, मैंने उस वक्त 2022 में आई हैड यूज दैट, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट पर्सनली। मैंने उसी से अपने नोट्स बनाए एंड आई मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू माय ओन नीड्स, उसमें और एनहेंसमेंट्स किए, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड इसमें सर तीन चीज आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड। नंबर वन इज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स के पेपर में आप ऑप्टिमैलिटी कैसे अचीव करते हो। नो, व्हाट इज ऑप्टिमैलिटी? द वेरी नेचर कि आपका क्या स्कोर आएगा, क्या वो आपका मैक्सिमा आएगा, दैट वुड डिपेंड कि आप पेपर को कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो मेरे पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती थी कि आई वुड 2 घंटे के पेपर में वुड डेडिकेट द फर्स्ट आवर फॉर द फर्स्ट रीडिंग। तो यानी कि 100 क्वेश्चन में फर्स्ट आवर में कंप्लीट कर लूंगा रीड करना पूरे से। सो 100 क्वेश्चन फ्रॉम 9:30 टू 10:30 आई वुड कंप्लीट डॉट एट 10:30, एंड हो सकता है मैं उसमें से सिर्फ 30 मार्क करूं। तो मेरा अप्रोच ये होगा कि उस फर्स्ट रीडिंग में जो क्वेश्चंस मेरे को 100% आ रहे हैं
या जिस क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि मैं कोई और आंसर नहीं मार्क करूंगा, मैं उसमें सर्कल मार्क कर देता था फर्स्ट रीडिंग में इन दी फर्स्ट आवर। और बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ लेता था, और उसके ऑप्शंस जो एलिमिनेट हो रहे होते थे, चाहे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हो चाहे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, मैं उन्हें एलिमिनेट कर दूंगा। सो फर्स्ट रीडिंग में इन द फर्स्ट 1 आवर आई वुड मार्क दोस क्वेश्चन जो 100% आ रहे हैं, और उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दूंगा क्वेश्चन पेपर में जो कि लग रहा है कि एलिमिनेटेबल है। Then in the next 1 hour, I would do three more readings. The second reading would be for 35 minutes, जिसमें मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा रिविजिट करूंगा जो कि मैंने अभी नहीं मार्क किए हैं। I would quickly like glance through that and try to answer it, और उसमें मैं और ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे को डायरेक्टली उस वक्त रीड करते हुए कोई क्वेश्चन क्लिक कर गया कि इसका ये आंसर होगा, तो आई वुड मार्क दैट। सो Hmm. जनरली मैं 30 40 क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में मार्क करता था। देन अगेन मैं 30 40 क्वेश्चन सेकंड रीडिंग में मार्क करता था इन दोस 35 to 40 मिनट्स। देन सर मैं अनदर 10 मिनट्स 10 15 मिनट्स देता था 1 to 100 दोबारा से एक बार पूरे वो क्वेश्चन जो मैंने नहीं मार्क किए उनको देखने के लिए, और मैं उसमें बड़ा बड़ा सर्कल मार्क कर देता वो क्वेश्चन जो कि मेरे को लास्ट रीडिंग के लिए रखने हैं। तो यानी कि मेरा साइकिल इस तरह से चलता था कि अगर मैं किसी क्वेश्चन पे थर्ड या फोर्थ टाइम आ रहा हूँ, तो मैं अगर कोई कंसेप्ट उसमें रिकॉल नहीं कर पा रहा था पहले, तो हो सकता है थर्ड या फोर्थ रीडिंग तक आते आते, सब्सिक्वेंट रिवीजन होते होते उस क्वेश्चन के, मैं उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को रिकॉल कर जाऊं और उससे कोई एक फैक्ट मिल जाए जिससे मैं ऑप्शन मार्क कर दूं। तो मैं Hmm. टोटल 4 रिवीजन करता था अपने पूरे क्वेश्चन पेपर के, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ रीडिंग में। थर्ड रीडिंग मेरा 15 मिनट्स का होता था, और फोर्थ रीडिंग फाइनल मेरा 7 to 8 मिनट्स का, 5 to 6 मिनट्स का होता था, जिसमें जो मैं क्वेश्चंस बड़े बड़े मार्क कर देता था कि ये मैं एंड के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको मैं विजिट करता था, और अगर मेरे को इंट्यूशन आता था कि ये सही आंसर हो सकता था तो मैं मार्क कर देता था। तो इस तरीके से मेरे 90 to 95 क्वेश्चंस मैंने हर साल मार्क किए, और फेयरली बहुत आसानी से सर मैंने 3 प्रीलिम्स बैक टू बैक इस अप्रोच से क्लियर किए। तो Very आई यूज टू interesting. कॉल इट ऑप्टिमैलिटी, कि आप एक साइक्लिकल, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करो लाइक अ मशीन। आप वहां Hmm. बैठे हो, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, उस 2 घंटे में आप नहीं सोच रहे हो आपका पेपर कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, खराब जा रहा है, कैसा पेपर आया, यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग। यू आर अ Hmm. मशीन जिसका सिर्फ इतना काम है कि उस 2 घंटे में पहले 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, अगले Hmm. 40 मिनट या 35 मिनट में आपको बाकी के जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं वो करने हैं, उसके अगले 15 मिनट में बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, आखिरी के 10 मिनट में आपको एक क्विक रीडिंग करके जिसमें इंट्यूशनरी कॉल लेना है वो करना है, बाकी क्वेश्चंस मार्क करने हैं। So that is the cycle I used to prepare for getting the maxima in my prelims score, and this works like heaven. आपकी जितनी नॉलेज बेस होगी आप उसके बेसिस पे बहुत अच्छा प्रीलिम्स में इस अप्रोच के थ्रू परफॉर्म कर पाओगे। As you said, there are certain questions that can be logically solved. But do aspirants develop this kind of logic while UPSC preparation only, or should they do finer activities of life also? Maybe read, maybe just meditate a bit and, keep some calm and keep some sanity around. How did it go with you? Like, did you develop this common sense and logic while preparation through rigorous academic preparation, or maybe certain elements of finer hobbies of your life helped here? So definitely finer hobbies and activities that we do and the things that we see in our surroundings help a lot in developing our, those logical capabilities. So Hmm. we should be active in terms of, at least reading a newspaper daily. That is Hmm. something that develops this capacity in the best fashion. Now we cannot do everything. Now I can say that अगर आप National Geographic देख रहे हो तो हो सकता है कुछ questions solve करने की capacity बढ़ जाए, but that is not possible practically for every aspirant, to solve to see National Geographic or any other channel as such. सो द Yeah. बेस्ट वे इज टू नंबर वन रीड द न्यूज़पेपर्स, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें आप लॉजिकली पढ़ लेते हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए वहां से, बट किसी वे में A B C D का करेक्शन Z से हो जाए ना, आप वहां पे सॉल्व कर लो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज द मेंटल काम। I think mental calmness is very important, to kind of just trust your instincts in the examination hall, and there meditation plays a role. Uh, Meditation would not help in any way, of course, intellectually or academically to solve a question, but the simple act of, maintaining your heartbeat at a low when you are facing, a challenge on your head is very important. अगर वो mm, लास्ट के 5-6 मिनट बच रहे हैं एग्जामिनेशन में, and you are able to kind of, just maintain your calm and solve that question with calmness, तो आप देखिएगा कि हो सकता है कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स को ज्यादा ट्रस्ट कर पाओ। जनरली व्हाट हैपेंस इज कि मोस्ट पीपल गेट इनटू मेंटल हैजार्ड, yeah. साइकी, दे गेट कंफ्यूज्ड, देन दे ए बी करके किसी एक को मार्क कर देंगे। माय अप्रोच इज कि आप अगर काम है तो आपको ए बी में कहीं ना कहीं एक इंस्टिंक्ट आएगा कि बी सही हो सकता है, एंड देन यू वुड मार्क दैट। हो सकता है Mm, वो गलत हो जाए, बट एक लंबे लार्ज इन अ लार्ज सेट यू वुड सी कि आप नेट नेट पॉजिटिव जोन में होंगे इफ योर प्रिपरेशन हैज बीन गुड। So there meditation plays a very important role. Every morning I personally used to dedicate like 10 15 minutes to, exercise and meditation. And not just meditation, even after every 1 hour or 2 hour, if you are taking, let's say, a 10-minute breathing exercise break,
where you're just, doing long breaths. That does wonders to you, because that kind of reignites your energy and that rejuvenates you from within. Also, examination hall mein some practice that you can do is that I used to start eating less, like, one week prior to the examination, eat less, and especially less calories, more fruits, less on carbs. So that helped me in terms of, maintaining my mental psyche, because ab jitna khayenge, brain would spend that much amount of energy in, kind of digesting that. So eat less during the examination cycle and focus more on fruits and other things. पहले से सारी चीजें आप डिसाइड कर लें. Like I used to practice visualization also, कि मेरा एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, how I would be able to, think of those 2 hours, and then those 1 hour or 2 hour break in between मैं क्या सोच रहा हूँ उसमें, everything I would visualize पहले से. तो Mm-hmm. examination day would be just like any other day for me. It's not something very special, and I would not think at all of anything. I would develop that stoic mentality, जहाँ पे I'm going to the examination hall with the only objective of solving those 100 questions in 2 hours and 80 questions in 2 hours. That's it. So Wonderful. every thought, my approach used to be कि examination खत्म होने के बाद I'm reborn. I would start thinking on these things कि कैसा गया, अच्छा गया कि नहीं गया, पेपर कैसा था, and every such kind of questions. But before that, the only thing that I have to do is, prepare, revise, and practice. Prepare, revise, and practice. That's it. You are like a machine. It sounds very artificial, but that's the reality of this journey. At least I personally followed that. थोड़ा सा stoic mentality आप एक साल के लिए develop कर लो, and then after that your life is fairly Okay. good. So So I'll touch the last theme, Sashwat, with you before I'll let you go. It's about like 85 days. Roughly 85 to 87 days are there after prelims, which is usually lesser than which we used to get before for the next year, right? So any change in strategy one, and interlinking, of course, as you said, you will be talking on that. What should aspirants do? You have given a brief, beautiful strategy to till prelims, and I'm sure with this strategy they'll be able to clear prelims. But what after following for on this strategy only, what happens in next 85 days then? So, sir, immediately after prelims, my approach used to be that I would uh, take a rest for 2 to 3 days first, and kind of, just uh, cope up with the exhaustion that we have had of prelims. तो एक दो दिन रेस्ट करने के बाद I would strategize कि मेंस के लिए कैसे करना है. My personal approach is कि there can be two ways you can kickstart your mains preparation afterwards. One is that पहला objective हमारा ये होना चाहिए कि we have to assess where we stand after prelims. हर एस्पिरेंट की मेंस की प्रिपरेशन अलग लेवल पे होगी. सम वुड हैव प्रिपेयर्ड लेट्स से 100% ऑफ देयर मेंस प्रिपरेशन बिफोर. Those who have given mains or those who have appeared in the interview may have had prepared almost everything, and they just would have to do value addition after prelims. So everyone would have a differential preparation. So what I personally suggest is that any aspirant who has given prelims has good understanding of all the subjects of GS. So one thing that they can do is that they can take up the last year's papers of GS 1, 2, 3, and 4, and they can solve them in the mains fashion just after prelims, after 3 to 4 days. सो आप सुबह 9 से 12, 2 से 5, या जो भी टाइम है आप उसमें GS 1, 2, 3, 4 दे लो. दैट रिगर में एक बार बैठ जाओ, देन यू वुड रियलाइज कि मेरे से पेपर नहीं सॉल्व हो रहा है, या टाइम एक्सीड हो जा रहा है, या कंटेंट शॉर्टेज हो रही है, जो भी हो रहा है, यू वुड रियलाइज वेयर यू स्टैंड, आपके पास कंटेंट कितना है और आपको किस हिसाब से एनरिचमेंट करना है. Once you have done that, you would have a fair assessment of your standing in the mains preparation and the gaps that you have in your mains preparation. After that, what you have to do is you have to start building your mains notes. That generally happens in 3 stages. I would just touch on that briefly. The first stage is that you have to do value addition, consolidation, and revision. This is the first stage. अगर आपके पास, let's say you have 85 days for mains examination, so the first 45 days to 50 days would go in this. जहाँ पे आपके पास मेंस के नोट्स बने हुए हैं जो आपने अक्टूबर से फरवरी में बनाए हैं, बट नाउ अ लॉट ऑफ इवेंट्स हैव हैपेंड इन करंट अफेयर्स, अ लॉट ऑफ न्यू वैल्यू एडिशंस हैव कम अप, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू वुड आल्सो रियलाइज कि ठीक है ये गैप है मेरे मेंस के नोट्स में, दैट आई कैन ऐड. मेंस के नोट्स भी कभी भी ऐसे नहीं बनते हैं कि एक गो में परफेक्ट नोट्स बन गए. आप देखोगे कि आप सब्सिक्वेंट रिवीजन में उसमें वैल्यू ऐड करते करते उसको बहुत अच्छा बनाते हो. तो वो जो फर्स्ट 50 days है, you would revisit your mains notes, you would again value add from other content that is available in the market, and you would update current affairs in that, and you would parallelly solve your test series from the coaching. That is the first stage of 40 55 days, 40 to 55 days. That can be depending on आपकी preparation कितनी है mains की.
आपको पैरेलली इसमें ऑप्शनल भी अपना करना है. सो माय अप्रोच वुड बी कि 40% टाइम वुड गो इन द ऑप्शनल, 60% टाइम वुड गो इन द जीएस. डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शनल एंड जीएस, यू कैन डिवाइड दिस रेशियो. यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स, क्योंकि सबकी कंडीशन, सबका स्पेसिफिक्स वुड बी वेरी डिफरेंट. Having said that, my understanding last year in the mains, pehle, before the mains examination was ki towards like August, I realized ki I just have an infodemic in mains. I have too much of content. I have too much of examples. I have too much of value additions. I have everything in too much, and I cannot retain anything. And I'm not able to like give in my answers. I'm writing very long answers, and I'm not able to deliver everything. So to do the interlinkages and to write answers in a more logical fashion, I came up with the framework approaches. So two approaches I would discuss for mains, which did heaven for me. But the first is frameworks approaches, which is very simple. On every subject, you can prepare a mnemonic or a framework with which you can derive your points. So कुछ कुछ बहुत कॉमन ऐसे फ्रेमवर्क्स आप बना लो. जैसे आईआर के लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, विच कैन बी योर ओन एब्स्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क. कुछ भी फ्रेमवर्क आप बना लो. जैसे मैंने बनाया एसएसपी डीएम फॉर आईआर. To cover any bilaterals or multilaterals, there would be a strategic angle to it, there would be a security angle to it, there would be a political angle to it, a developmental angle to it, or maybe a maritime or people to people angle to it. So this, and then there can be an economic angle to it. So इस तरह करके मैंने एक framework बनाया कि SSP और DM something like that, and then I would prepare frameworks. and इस framework में मैं अपने मेंस के notes की जो मैंने बनाए हैं उसके जब second revision में मैं इसके summary points बना लूंगा. So initially after first revision, that is in the first 40 to 55 days, you would realize कि आपने बहुत detailed bulky notes बना लिए हैं. जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो आपको अपने नोट्स को समराइज करके इस फ्रेमवर्क में उतार देना है. तो जैसे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, आपने इंडिया नेपाल के डिटेल नोट्स बना लिए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, एवरीथिंग. अब जब आप इसका रिवीजन कर रहे हो तो आपको सिर्फ एसएसपी डीएम के फॉर्मेट में आपको इसके कोर फैक्ट्स, कोर एग्जांपल्स आपको नोट कर लेने हैं कि स्ट्रेटेजी में क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड थिंग्स लाइक दैट. सिक्योरिटी में क्या है कि हमारे कौन से एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल में क्या है कि हम कौन कौन से इंटरनेशनल फोरम में साथ में, डेवलपमेंटल में क्या है कि हमारा कौन सा ऑयल पाइपलाइन चल रहा है, कौन सी एनर्जी पाइपलाइन चल रही है, कौन सी महाकाली ट्रीटी एंड ऑल दी वाटर रिलेटेड ट्रीटीज चल रही है. एंड इसी फॉर्मेट में आपको उनके इश्यूज बना लेने हैं. तो ये फॉर्मेट जब आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में बहुत तेजी से एक के बाद एक पॉइंट्स रिकॉल कर पाओगे. इन द सेम फैशन मैं बनाता था. जैसे इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली, बहुत एब्स्ट्रैक्ट मेरे फ्रेमवर्क्स होते थे. तो एक एथिक्स में आई वुड मेक डेस्पासीटो. Now Despacito में I would make D से हो गया dedication to public service, discipline. E से हो गया empathy, S से हो गया selflessness, P से हो गया probity and participative culture, A से हो गया accountability, answerability, I से हो गया integrity and T से हो गया trustworthiness and O से हो गया openness and things like that. ऐसे करके मैं frameworks keywords का बना लूंगा, and that I would write at the back of the question paper in the examination hall after getting the question paper. और जब मैं answers लिखता था तो I would make sure कि अगर मैं ट्रांसपेरेंसी कहीं यूज कर रहा हूं तो मैं दोबारा ट्रांसपेरेंसी तब तक ना यूज करूं जब तक कि बहुत नेसेसरी है. आई वुड यूज ओपननेस इन इन प्लेस ऑफ दैट. अगर मैं अकाउंटेबिलिटी यूज कर रहा हूं तो मैं दोबारा उसको ना यूज करूं. आई वुड यूज आंसरेबिलिटी इन प्लेस ऑफ दैट, जस्ट टू हैव दोस डाइवर्सिटी ऑफ कीवर्ड्स. तो मैं कीवर्ड्स का भी ऐसे एक फ्रेमवर्क बना लेता था, एंड आई वुड मेंशन दैट एट द बैक ऑफ माय क्वेश्चन पेपर टू रिकॉल इट इन द एग्जामिनेशन हॉल. ऐसे ही देयर इज क्रैप ट्री इन गवर्नेंस, जहाँ पे कंसेंसस ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटिव, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी, समथिंग लाइक दैट. ऐसे करके बना लेता था, एंड दैट वुड हेल्प मी टू जनरेट मोर एंड मोर पॉइंट्स फॉर दी सेम आंसर्स. आप देखोगे कि इन सारे से पॉइंट्स आप कैसे भी निकाल लोगे. किसी भी क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करके निकाल ही लोगे, और डेटा आपको इतने याद हो जाएंगे एग्जाम हॉल में कि आप ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में से डेटा आएगा, एग्जाम में आप लिखने लगोगे. So this is very important to develop that interdisciplinary approach. Even for the this interdisciplinary approach, I used the mains syllabus very thoroughly. तो आप देखोगे कि तो मेंस के सब्जेक्ट्स भी बहुत जिसको कहते हैं डाइवर्स हैं. So from history to polity to economics to science and tech to ethics to economics, I would use examples from these while let's say curating my essay. वहां पे essay के examples निकालने के लिए भी I would use this approach. And again मैं इसका भी कोई mnemonic बना लिया था which I don't recall now, जो कि मैं डायरेक्टली यूज करके एसए में अलग अलग डायमेंशन जनरेट करता था. तो इस तरीके से आप देखिएगा कि इस फ्रेमवर्क अप्रोच से आप बहुत तेजी से अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग डायमेंशंस अपने आंसर्स के जनरेट कर पाएंगे. दिस यू कैन डू अक्रॉस द सब्जेक्ट्स एंड अक्रॉस द टॉपिक्स. पॉलिटी में मैंने फेडरलिज्म में भी ऐसे ही कुछ बनाया था, एंड सिक्योरिटी में भी मैंने आई रिमेंबर साइबर सिक्योरिटी में कुछ ऐसे कीवर्ड्स बनाए थे विच आई यूज्ड वेहेमेंटली. एंड एंड में जब मेंस का आप आखिरी रिवीजन कर रहे होगे वो 7 दिन एग्जाम के पहले, तो आप यही सारे कीवर्ड्स और यही सारी चीजों का रिवाइज करते हो मेंस के जस्ट पहले. Right. One thing that I would suggest, sir, in addition to like what I used uniquely during answer writing is कि
Generally, my experience was answer writing में कि there is some mental difference while thinking and while writing answers. So Hmm. answer thinking is very different than answer writing. Generally, we think very fast, but we write very slow. That is a human nature. And मेरा ये experience था कि when I am writing answers, and if someone has practiced answers in this group, they would know this, कि आप कोई point लिखते हो, आपके मन में points आ रहे होते हैं back to back, but by the time you have written the first point, आप भूल जाते हो points. And then second point लिखने में आपको थोड़ा सा mental effort करना पड़ता है, and that takes some time. And इसीलिए आपके आंसर राइटिंग में टाइम लगता है, क्योंकि आप सेकंड पॉइंट लिखोगे, फिर आपको थर्ड में थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर आप थर्ड पॉइंट लिखोगे, फिर फोर्थ में थोड़ा सोचना पड़ेगा. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत तेजी से आप पॉइंट्स जनरेट नहीं कर पाओगे. सो व्हाट आई डिड लाइक इन द थर्ड अटेम्प्ट वाज इन द सेकंड मीन्स कि आई डेवलप्ड अ राइटिंग थिंकिंग कोरिलेशन. कि जब मैं आंसर लिख रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट का, एट दैट पॉइंट आई एम नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन राइटिंग दैट पॉइंट, आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. तो मेरा ऐसा बहुत मेंटल एफर्ट इसमें जाता है कि लिखते वक्त आप अगले पॉइंट के बारे में सोच रहे हो, एंड बाय द टाइम यू कम टू द लास्ट वर्ड ऑफ दैट पॉइंट यू शुड हैव द नेक्स्ट पॉइंट, ताकि आपके पेन की कलम रुके ना पेपर पे, एंड यू हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ टाइम अक्रॉस द पेपर्स. नहीं तो जनरली पेपर जब लोग सॉल्व करते हैं मेंस का, तो शुरू में तो दे स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस दे रन थ्रू. बट मेरे साथ ऐसा होता था कि आई यूज टू कंप्लीट ऑल द जीएस पेपर्स 5 मिनट पहले एग्जाम के, क्योंकि इट वाज सो स्ट्रक्चर्ड अक्रॉस. तो इट वाज बिकॉज ऑफ दिस राइटिंग थिंकिंग कोरिलेशन, कि आप आंसर लिखते लिखते आप अगले पॉइंट के बारे में सोचो, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ ए मेंटल एफर्ट. वो प्रैक्टिस से आप एक बार डेवलप कर लो, देन यू वुड रियलाइज कि आप बहुत तेजी से आप आंसर जनरेट कर पा रहे हो. वन मोर थिंग, कि जब आप बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, देन यू वुड रियलाइज कि आंसर राइटिंग इज ऑल्सो फ्यूटाइल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि इवेंचुअली व्हाट यू आर डूइंग इज आंसर थिंकिंग. So by the time August end comes, you can gradually shift towards writing a lot of answers to brainstorming a lot of answers. आप बहुत सारे brainstorm करो पॉइंट्स को, आप शॉर्ट में एक आंसर्स को लिख लो, ताकि आप ये देखो कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं उस पे, आप एक आंसर को विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, जैसा आप एग्जाम में लिखना चाह रहे हो. और अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ. वन थिंग दैट अगेन आप सेकंड फर्स्ट फेज में आप अप्लाई करोगे, जो 40 to 55 डेज का होता है, कि आप कोशिश करो कि आप अपने वैल्यू एडिशंस को थोड़े से सेपरेट कर लो. जैसे हम इनिशियली अभी जब अक्टूबर से फरवरी के बीच नोट्स बनाएंगे अपने मेंस के, वो एक कंसोलिडेटेड नोट्स होंगे सब्जेक्ट वाइज. लेकिन जब हम जुलाई से लेके अगस्त तक जो हमारा फर्स्ट रिवीजन होगा हमारे नोट्स का और वैल्यू एडिशन होगा, कोशिश करो कि आप अपने वैल्यू एडिशन को थोड़ा सेपरेट करते रहो. तो मेरा ये अप्रोच होता था कि मैं कमिटीज के एक सेपरेट रिपोजिटरी बना लूंगा अपार्ट फ्रॉम माय बेसिक सब्जेक्ट वाइज नोट्स. तो मेरे कमिटी के एक, जिसको मैं एचवीएन कहता था, हाई वैल्यू नोट्स, जिसमें मेरे कमिटी के रिकमेंडेशंस एक जगह कंसोलिडेटेड होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशंस एक जगह कंसोलिडेटेड होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कंसोलिडेटेड होंगे, फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंसोलिडेटेड होंगे, एसडीजी का एक पेज होगा उसमें, उसमें मैं एथिक्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स का और कोटेशंस का एक पेज रखूंगा. तो ऐसे करके मैंने एक एचवीएन करके बना लिया, जिसमें मैं सारे कंसोलिडेटेड हाई वैल्यू नोट्स को रखता था. और एग्जाम के 1 घंटे पहले, इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग एवरी नोट दैट आई हैव, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता था, आई वुड जस्ट रिवाइज दीज एचवीएंस. और मैं मेक श्योर करता था कि किसी तरीके से ये एचवीएंस मेरे जीएस के आंसर्स में घुस जाए. तो उससे आपको एग्जाम हॉल में काफी हेल्प मिलेगी. एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड दीज 40 to 55 डेज में जो पहला आप रीडिंग कर रहे हो मेंस का एंड कंसोलिडेशन एंड रिवीजन कर रहे हो, सेकंड फेज में आपको यही करना है. दैट वुड बी फ्रॉम लेट्स से अगस्त फर्स्ट वीक टू अगस्त एंड, जिसमें आप इस फ्रेमवर्क में आप अपने सारे शॉर्ट नोट्स को ऐड कर रहे हो, यानी कि आप अपने नोट्स को कंसोलिडेट कर रहे हो. तो अगर आपके पास इतना मेंस का नोट्स बना है, सो आई वुड फॉलो एन इनवर्ट फिल्ट्रेशन अप्रोच, जहां पे मैं ग्रेजुअली अपने नोट्स को 50-50% हर रिवीजन में कम करता जाता था. एंड टुवर्ड्स द एंड लास्ट वीक मेरे पास सिर्फ हर जीएस के टॉपिक्स पे 10-12 पेज के नोट्स होते थे, एंड दैट आई वुड रिवाइज बिफोर द एग्जाम एंड गो एंड राइट. So this would be my approach for the mains examination. It takes a huge toll on your mental health, at least it did with me. It takes a huge toll on your physical health also, because you are writing like anything. You are writing like a beast. You are writing subah sham, subah sham, subah sham, and that takes a huge toll on your physical health. So at least आप 2 iteration mains के exam जैसे आप टेस्ट सीरीज में पहले ही आप दे के देख लो. यानी कि आप अगस्त मिड में एक मेंस पैटर्न पे टेस्ट सीरीज दे लो, और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मेंस पैटर्न पे टेस्ट सीरीज देख लो. आपकी बॉडी अडाप्ट कर जाएगी मेंस एग्जामिनेशन से, आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगी. लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाके आप पहले 3-3 घंटे के टेस्ट अलग अलग दियो, और आप डायरेक्ट जाके मेंस का एग्जाम दे रहे हो, तो आप देखोगे कि आपके बॉडी वुड एक लाइक एनीथिंग आफ्टर जीएस 4 का पेपर. सो दैट वुड बी माय अप्रोच टू रेगुलेट योर बॉडी ड्यूरिंग द मेंस. Wonderful, wonderful session, Sashwat. Thank you so much for taking out your time. Your insights on the 8 months and beyond were tremendously helpful.
with your permission, we will try to put this session on YouTube also. We'll try to write more pointers also while editing when whatever you have said. So I think that will be in much more detailed. And yeah, students, you can remain here after he goes. I and Nisha ma'am are here. We can take your doubts based on what he said. I have written all the pointers, and of course, we have our own understanding to add to your knowledge. Okay, so thank you so much, Shashwat, for lovely interaction. I know you are traveling, and he has changed his traveling plans, especially for this session. I'm very grateful, Shashwat. Thank you. Thank you, And sir. yeah, you may leave. Thank you, Shashwat. Okay. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you so much.